by the leader of Pakistan to tarnish the image of this august forum. Pakistan desires peace with India, as with all its neighbors. But sustainable peace in South Asia is contingent upon resolution of the Jammu and Kashmir dispute. Propagate false and malicious propaganda against my country, and seeking in vain to divert the world's attention. Environment by these barbaric acts. The onus remains on India to create a conducive environment. तो मोदी और बाइडेन की मुलाकात में रिश्तों के उस दौर का आगाज हो चुका है जहां एक सोच है, साथ है, विश्वास है और आतंक पर आघात है। दोनों नेता गर्मजोशी से मिले और कई मुद्दों पर मंथन के बाद साथ चलने के रोड मैप पर आगे बढ़े। तो उधर पाकिस्तानी पीएम इमरान खान फिर से कश्मीर राग अलाप रहे हैं। आतंकियों से प्यार करने वाले इमरान आतंक से इनकार कर रहा है। यूएन में इमरान ने कश्मीर राग अलापा तो भारतीय राजनयिक ने वो करारा जवाब दिया कि पाकिस्तान बेनकाब हो गया। तो इमरान खान ने क्या कुछ कहा और उसका जवाब भारत की तरफ से क्या दिया गया, वो हम आपको बताते हैं। दरअसल आप देख सकते हैं, इमरान खान ने फिर से यूएन में कश्मीर का राग अलापा, पाकिस्तान में गैर मुसलमान दहशत में है, यह हमारी तरफ से जवाब वहां पर दिया गया। इमरान खान ने और क्या कुछ कहा वो आपको हम बताते हैं। उन्होंने कहा कि फिर आतंक को लेकर उन्होंने एक बार फिर से उन्होंने झूठ बोला, जिस पर हमारी तरफ से कहा गया कि कश्मीर से अवैध कब्जा खाली करे पाक, क्योंकि खुद जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां पर पाकिस्तान ने कब्जा जमाया हुआ है, उसे कायदे से खाली करना चाहिए। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर एक बार फिर से यूएन में इमरान खान ने गलत बयानी की है, आतंक को लेकर झूठ बोला है और जिस पर जवाब भारत का सामने आया है। ओसामा बिन लादेन को पाक ने पनाह दी, ये भारत की तरफ से कहा गया और ये कहा गया कि एक तरह से पूरे वर्ल्ड को और यूएन जैसे जो अगस्त स्टेज है उसका गलत उपयोग किया इमरान खान ने। Pakistan desires peace with India, as with all its neighbors. But sustainable peace in South Asia is contingent upon resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the relevant United Nations Security Council resolutions and the wishes of the Kashmiri people. Last February, we reaffirmed the 2003 ceasefire understanding along the line of control. The hope was that it would lead to a rethink of the strategy in Delhi. The onus remains on India to create a conducive environment for meaningful and result-oriented engagement with Pakistan. Let me reiterate here that the entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India. This includes the areas that are under the illegal occupation of Pakistan. We call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its illegal occupation. Mr. President, allow me to be categorical about India's position. We desire normal relations with all our neighbors, including Pakistan. However, it is for Pakistan to work sincerely towards creating a conducive atmosphere, including by taking credible, verifiable, and irreversible actions to not allow any territory under its control to be used for cross-border terrorism against India in any manner. The current situation in Afghanistan, for some reason, Pakistan has been blamed for the turn of events by politicians in the United States and some politicians in Europe. From this platform, I want them all to know the country that suffered the most, apart from Afghanistan, was Pakistan when we joined the US war on terror after 9/11. Regrettably, this is not the first time the leader of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against my country, and seeking in vain to divert the world's attention
from the sad state of his country, where terrorists enjoy free pass, while the lives of ordinary people, especially those belonging to the minority communities, are turned upside down. Mr. President, member states are aware that Pakistan has an established history and policy of harboring, aiding, and actively supporting terrorists. This is a country which has been globally recognized as one openly supporting, training, financing, and arming terrorists as a matter of state policy. और अब बात हम करेंगे मोदी और बाइडेन की मुलाकात की। जी हां, वॉशिंगटन में दोनों नेता मिले तो गर्मजोशी के साथ मिले और सारे मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को भारत आने का न्योता भी दिया, तो बाइडेन ने एक कदम आगे बढ़कर साथ चलने की बात कही। तो आइए आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए क्या कुछ बातचीत हुई है इन दोनों नेताओं के बीच। भारत अमेरिका एक दूसरे के लिए बहुत उपयोगी होंगे, ये बात यहां पर की गई है। और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देशों का लोकतंत्र दुनिया के लिए मिसाल है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बाइडेन का विजन हमारे लिए प्रेरक है। प्रधानमंत्री ने ये बात कही और साथ ही ये कहा कि 40 साल भारतीय अमेरिका को ताकतवर बना रहे हैं, हमें पॉपुलर टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाना होगा। तो ये दोनों ही देश साथ मिलकर और क्या कुछ कर सकते। एक्सेलेंसी, आज की हमारी ये बायलैटरल समिट, लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये दशक 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक का ये पहला वर्ष, मैं पूरे दशक की तरफ देख रहा हूं कि आपके नेतृत्व में जो बीज हम बोएंगे, इस पूरा दशक हमारी दृष्टि से बहुत ही भारत और अमेरिका के संबंध में, विश्व के लोकतांत्रिक देशों के लिए एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव ये कालखंड रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। As I think you know, Mr. Prime Minister, I've long believed that the U.S.-India relationship can help us solve an awful lot of global challenges. In fact, back in 2006, I set that hope out, where I said that by 2020, when I was Vice President, 2020, India and the United States would be among the closest nations in the world. It is destined to be stronger, closer, and tighter, and I think it can benefit the whole world. लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध हैं, हम दोनों सबसे बड़े लोकतंत्र हैं पूरे विश्व में, इन्हें और ज्यादा मजबूत होना है और ज्यादा करीब होना है और एक दूसरे के साथ रहना है। And I think that's begun to come to pass. And today, we're launching a new chapter in the history of U.S.-India ties and taking on some of the toughest challenges we face together, starting with a shared commitment to ending the COVID pandemic. तो ऐसा हुआ है और आज हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच में, और उसका पहला काम है कि हम इस बड़ी महामारी कोविड-19 को समाप्त करने के लिए वचनबद्धता व्यक्त कर रहे हैं। Prime Minister and I were going to be talking today about what more we can do to fight COVID-19, take on the climate challenges that the world face, and ensure stability in Indo-Pacific, including with our own Quad partners. और राष्ट्रपति जी, जैसे कि विषयों का आपने उल्लेख किया, इस सारे विषय बहुत महत्वपूर्ण है, भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। और आपने पदभार संभालने के बाद, चाहे कोविड हो, क्लाइमेट हो या क्वाड हो, हर एक में एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव लिया है। और मैं समझता हूँ ये यूनिवर्सिटी, ये जो आपका इनिशिएटिव है, आने वाले दिनों में बहुत बड़ा प्रभाव पैदा करेगा। और मुझे विश्वास है कि आज की हमारी बातचीत में भी इन सारे विषयों को हम विस्तार से विचार विमर्श करके हम कैसे साथ चल सकते हैं, हम एक दूसरे के लिए भी और दोनों मिलकर दुनिया के लिए भी क्या कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में आज की चर्चा बहुत सार्थक रहेगी। मिलियन से अधिक लोग भारत के यहाँ अमेरिका की विकास यात्रा में सहभागी हैं। ये दशक में टैलेंट का अपना एक महत्व है। पीपल टू पीपल, ये टैलेंट इस दशक में बहुत ही प्रभावी भूमिका अदा करेगा। और भारत की टैलेंट अमेरिका की विकास यात्रा में पूरी तरह सहभागी होती चली जाए, उसमें आपका योगदान
बहुत महत्वपूर्ण है। Indian American. जब मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को उनकी कुर्सी दिखाई तो उनको मैंने कहा था कि हर रोज इस कुर्सी पर हमारी उप राष्ट्रपति बैठती हैं जो कि भारतीय मूल के हैं। Vice President's mother was from India, a scientist and a remarkable woman. उप राष्ट्रपति जी की जो माता थी वे भारत से थी और एक बहुत ही जानी मानी वैज्ञानिक थी। हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। और आपको बता दें कि आज शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएनजीए को संबोधित करने वाले हैं, जहां आतंकवाद, कोरोना महामारी समेत कई मुद्दों पर वो अपनी राय रखेंगे। अपने संबोधन के लिए पीएम न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। वहां होटल में पहुंचने पर स्वागत जमकर की गई। देखिए। भारत माता की मोदी जी, we are proud of you. बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, बहुत टेक केयर ऑफ योर हेल्थ सर। End of rope line. इसी के साथ रुकेंगे यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।